کی آیت مقدسہ سے پڑھ سکتے ہیں 7ویں آیت مقدسہ تک آپ یہ حوالہ نکال کے رکھیے گا. 3 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے آپ کی خدا جب آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. آمین. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی آپ نے بولنا ہے آپ کی زندگی شاباش. پہلا پوائنٹ ہے جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی زندگی جو ہے یہ پہلے جیسی نہیں رہے گی کیونکہ آپ کے خدا کے آنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور دوسرا پوائنٹ ہے آپ جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کے کام پہلے جیسے نہیں رہیں گے. آپ کے کام بھی کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے جب خدا آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کا نام پہلے جیسا نہیں رہے گا. آمین. آپ کا نام پہلے جیسا نہیں رہے گا. کون آئے گا جب آپ کا نام پہلے جیسا؟ خدا جب آپ کی زندگی میں آئے گا. اب چرچ میں بڑے لوگ چرچ میں آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم خدا کا کلام سنیں اس کی عبادت کریں اس کی ورشپ کریں اور اس کے حضور میں جمع ہو. لیکن یاد رکھیے جتنے چرچ میں آئے ہیں سارے چرچ میں آنے والے ایماندار نہیں ہوتے. میں جب یسوع مسیح کی دوران خدمت دیکھتا ہوں تو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ساری کلیسیا ساری پبلک ایماندار نہیں تھی. بڑے لوگ صرف یسوع کے ساتھ اس لیے چلتے تھے کہ ان کو روٹی ملتی تھی. بڑے لوگ یسوع کے ساتھ اس لیے چلتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع کو دیکھیں گے کہ کون کون معجزات پاتے ہیں. یعنی اس کو میں یہ کہتا ہوں کئی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے تھے ہے نا. یہ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں جو یسوع مسیح کے اس وقت کی عبادت میں موجود ہوتے تھے. اور بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ 5000 مردوں کی تعداد کتنی؟ 5000 کن کی تعداد؟ مردوں کی عورتوں اور بچوں کو نکال کے بچوں کے. میں پہلے بھی بتایا میں نے کہا کہ جو پہلی کلیسیا تھی اس میں لکھا ہے 120 کی جماعت میں اور چند عورتیں ہے نا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں 5000 مردوں کی تعداد. تو اس کا مطلب عورتوں اور بچوں کے تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کی تعداد زیادہ تھی ہے نا. اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو یسوع کہتے 5000 عورتوں کے علاوہ مردوں اور بچوں کی تعداد. تو اس کا مطلب یہ ہے ترتیب یہ ہے کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. اور آج ہے نا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ آج کا مرد شاید وہ کہتا ہے میں ڈبل جاب کروں گا میرے گھر کا گزارا ہوگا, میں ٹرپل جاب کروں گا میرے گھر کا گزارا ہوگا, میں پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے اپنے گھر کا گزارا کروں گا. بس اب اگر میں نے چھٹی کر لی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے آپ کے میرے گھر کا گزارا آپ کی میری کمائی سے نہیں ہوگا. بڑے لوگ سارا خاندان مل کر کمائی کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے جب خدا آپ کی زندگی میں آ جائے گا آپ کے گھروں کا گزارا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے. گھر کے حالات آپ کے بے پیسے سے درست نہیں ہو سکتے, گھر کے حالات آپ کی سوچ سے درست نہیں ہو سکتے, گھر کے حالات آپ کے خدا کے آنے سے درست ہو سکتے ہیں. آمین. اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی سوچ کے اندر اس بات کو لے کر آئیں, آپ خدا کے پاس جائیں گے آپ کا خدا آپ کے حالات بدلے گا. اس لیے ذرا حوالہ پڑھیے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے
और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत इसका खानों पेशा देखें, ये कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को घसीट घसीट कर कैद खाना के अंदर लेकर जाने वाला ये पर्सन है। ये अपने शरीयत के मुताबिक, ये शरीयती तौर पर ये बड़ा पाबंद नजर आता है। हालांकि अगर शरीयत के कानून के मुताबिक जाए तो ये गमलीएल का शागिर्द है, और गमलीएल उस वक्त का सबसे टॉपर स्कॉलर था। उस वक्त का ये टॉपर स्कॉलर, ये उसका शागिर्द था। टॉपर स्कॉलर का शागिर्द होने के नाते इसकी जिंदगी के अंदर शरीयत की जितनी बातें कानून थे, ये उनका पैरोकार था। शरीयत के लिहाज से ये बड़ा पाबंद था, इसीलिए ये कलीसिया को सताता था, क्योंकि ये समझता था कि हम ठीक हैं, ये गलत है ना। और इसके बारे में अगर देखें, कैसा पर्सन जो कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को घसीट घसीट कर, लेकिन मर्दों और औरतों को लिहाज नहीं करने वाला, ना मर्दों का और ना औरतों का। और मर्द बूढ़े भी होते होंगे, औरतें जवान भी होती होंगी, लेकिन यूँ लगता है कि इसने लिहाज नहीं किया। लेकिन बाइबल के अंदर हम जरा पढ़ेंगे, और उसे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मज़मून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर। ये सफ़र उसके लिए ऐसा सफ़र बन गया कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। हमें कई दफ़ा हम ज़मीन पर ज़िंदगी एक सफ़र है ना। हम जो ज़िंदगी का सफ़र गुजार रहे हैं, सफ़र गुजारते गुजारते कई दफ़ा खुदा हमें आवाज़ देता है। आप में से बड़े लोग हैं जिनको खुदा आवाज़ देते हैं, लेकिन हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते। इसको आवाज़ दी गई थी, अगर हमारे जैसा होता तो ये खुदा की आवाज़ को रद्द कर देता, है ना। इसको आवाज़ दी गई, इसको बोला गया, इसको सुनाया गया, इसको बताया गया। और जब इसके बारे में हम देखते हैं तो जरा आगे पढ़िएगा जरा, कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा पहला कहा कि नूर आया। इसका मतलब ये है कि नूर ये ज़मीनी नहीं था, ये रोशनी ज़मीनी रोशनी नहीं थी, ये रोशनी सूरज की रोशनी नहीं थी, ये रोशनी चांद सितारों की रोशनी नहीं थी, बल्कि ये रोशनी खुदा के जलाल की रोशनी थी। हमें यह कहा जाए उस पर क्या आया है, नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका। लफ्ज क्या है, आ चमका जी। और वो जमीन पर गिर पड़ा। और जब आ चमका तो वो क्या हो गया, जमीन पर इतनी जबरदस्त रोशनी, इतना जबरदस्त खुदा का जलाल, और लिखा है कि वो जमीन पर गिर पड़ा। आगे, और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। आवाज क्या आई है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो इसका मतलब यीशु मसीह उसके नाम को जानते थे। साउल के नाम का मतलब क्या है, बड़ा। साउल के नाम का मतलब क्या है, बड़ा। अब इसका मतलब, इसके नाम का मतलब बड़ा था और बड़े बड़े काम करता था, है ना, बड़े काम। साउल के नाम का मतलब, अगर आप इसको देखें, इसकी जिंदगी को देखें तो आगे जरा पढ़िएगा। उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है। उसने पूछा है, चलिए कहा ना, ए साउल तू मुझे। उसने पूछा तू
कौन है? कौन है जी? उसने कहा मैं यीशु हूँ। और उसने जिसे- कहा मैं क्या हूँ? यीशु हूँ यीशु हूँ। जिसे तू सताता है। जिसे तू क्या करता है? सताता है। आगे जरा देखे। मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना अच्छा थे। देखिए, हैरानगी की बात यह है, जितनी पब्लिक उसके साथ थी, है ना, जितने उनको मसीहियों को कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए गए थे, वो सारे आवाज तो सुन रहे थे लेकिन उसको देखते ना थे। हैरान होंगे आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन ये आवाज दूसरे लोगों के साथ मुखातिब नहीं, ये आवाज लीडर के साथ है। वो लीडर जो उस वक्त के लोगों का लीडर था, क्यों आवाज उसको मिली? क्योंकि उसको चुनना चाहता था। और ये बताया गया जो करना होगा मैं तुझे बताऊंगा। यानी यीशु मसीह के लफ्ज लेके उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझे कहा जाएगा। जो तुझे करना चाहिए वो तुझे क्या किया जाएगा? अब याद रखिए, इसने मसीह को अपनी जिंदगी में आने दिया, है ना। आज कितने लोग हैं मसीही घर में पैदा हुए हैं, मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन वो मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने नहीं देते। अगर पूछा जाए तो कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, हम मसीही हैं। अगर पूछा जाए तो कहते हैं पैसा हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं। कई दफ़ा तो लोग ऐसे भी कहते हैं पैसा को नहीं थे तुसी नहीं पढ़ते हो, जिन्नी असी पढ़ने तो अकल फिर नहीं आती, है ना। इसका मतलब ये है कि बाइबल पढ़ेंगे लेकिन जब तक अमल नहीं होगा आपकी जिंदगी में असर नहीं होगा, है ना। असर तब होगा जब आप बाइबल मुकद्दस को अपना काम करने देंगे। आपकी जिंदगी के हालात तब बदलेंगे जब आप खुदा को अपना काम करने देंगे। आज बहुत सारे मसीह खुदा को खुदा का काम करने नहीं देते और खुदा का काम खुद करना शुरू हो गए हैं। हमें चाहिए कि खुदा को खुदा का काम करने दें। जब मुकद्दस पौलुस की जिंदगी में खुदा आया तो पहला काम पौलुस की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हमें उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आप और मैं अगर अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को आने देंगे, यीशु मसीह को दावत देंगे, तो हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज बहुत सारे मसीह जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की है, लेकिन उनकी जिंदगी पहले जैसी है। लेकिन याद रखिए, अपनी जिंदगी पहले जैसी ना रहने दें। अपनी जिंदगी के वक्त को कीमती बनाएं, अपनी जिंदगी के वक्त की पहचान करें, क्योंकि ये वक्त आपको खुदा ने इसलिए दिया ताकि आप अपने वक्त के अंदर अपनी जिंदगी को बदलें, अपने वक्त के अंदर अपने खुदा को आने दें। आज अगर मसीही घराने बरकतें पाना चाहते हैं तो याद रखिए, अपने खानदान के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को आने दें। दूसरी बात, आपके काम पहले जैसे नहीं रहेंगे। पौलुस के काम पहले जैसे नहीं रहे। पौलुस पहले कलीसिया को सताने वाला, लेकिन अब कलीसिया को बचाने वाला। हमें पहले क्या करने वाला था? दुख देने वाला, इज्जत नहीं करने वाला, लिहाज नहीं रखने वाला। ना ये बड़ों का लिहाज रखता, या ना ये मर्दों का लिहाज रखता, ना ये औरतों का लिहाज रखता, ना ये किसी बूढ़े का लिहाज रखता। लेकिन जब यीशु जिंदगी में आ गया, इसकी जिंदगी के अंदर बुजुर्गों का लिहाज आ गया, औरतों का लिहाज आ गया, बच्चों का लिहाज आ गया, और इसकी जिंदगी के पहले जैसे काम नहीं रहे, बल्कि इसने खैमे सिलाई कर करके खुदा के कलाम को सीखा, खैमे सिलाई कर करके खुदा के कलाम की मुनादी की, खैमे सिलाई कर करके खुदा की खुशखबरी को सुनाया। एक बात बड़ी अक्सर
जब कभी किसी ने चंदा ना पादरी को देना हो तो वो एक बात बड़ी खूबसूरत कहता है, पता क्या कहता है? लो जी पलूस ने भी ते काम करके, है ना, काम करके मरा दिया, है ना, कहने या नहीं? अच्छा किन्ने कहने आपके पलूस ने काम करके मरा दिया? देखो मुझे बताएं उसका जो काम करने का प्रोसेस था वो उस वक्त था जब वो मसीह में आया और उसने उस वक्त तालीम पानी थी, और तालीम पाने के लिए उसके पास वसाइल भी नहीं होते थे, और उस वक्त उसने खैमे सिलाई किए थे, है ना। लेकिन जब वो इतना मसीह के अंदर डीपली हो गया, 14 खतूत लिखे। अब मुझे बताएं वो कभी कैद की हालत में है, कभी वो जहाज़ों के ख़तरे में है, कभी वो मौत के ख़तरे में है, कभी वो जंगलों के ख़तरे में है, और वो तो दिलेरी के साथ कहता है कलीसिया को, मेरे आने से पहले चंदे क्या करो, मेरे आने से पहले चंदे इकट्ठे कर, नहीं आवाज साई को किया गया भाई। वो पर्सन वो दलेरी से कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है कि मेरे आने से पहले क्या करो, चंदे क्या करो, इकट्ठे करके रखो। अब मुझे ये बताएं कि अब जो कहते हैं कि उन्होंने भी इंतकाम करके बना दी थी ना, नहीं पता, हमारी सोच सिर्फ एक पहले की हद तक होती है ना। लेकिन याद रखिए फिर पलूस के बारे में हम देखते हैं, उसने पता नहीं 3 साल या 3.5 साल किराए का घर लिया, और उस किराए के घर में उसने इबादत की थी, है ना। कैसा घर लिया? किराए का। आज भी कई दफा ये कहा जाता लो जी कितने लिखे घर च कलाम सुनाते इबादत करो, है ना, कहते नहीं हम कई दफा, या कई अदर डिनोमिनेशन कहती हैं ना जी इन्होंने तो घर च बस इबादत करते, कितने कलाम च लिखा है। हालांकि बाइबल में बेशुमार वाक़यात हैं, बाइबल में मेरे आपके यीशु मसीह ने भी घरों के अंदर खुदा के कलाम की मुनादी की है। बाइबल के अंदर ये भी देखते हैं कि पलूस ने किराए का घर लिया, और किराए के घर में क्या किया, मुनादी की है। अब मुझे बताएं किराए का घर लिया, और किराए का घर का किराया कौन देता है ना, कलीसियाएं देती होंगी। ये सारी कलीसियाओं का राइट है, चर्च का बिल ये कलीसियाओं का राइट है, कॉर्पोरेट की मेंटेनेंस ये कलीसियाओं का राइट है, साउंड सिस्टम की मेंटेनेंस ये कलीसियाओं का राइट है, चर्च की जितनी भी आप ज़रूरियात देखते हैं ये कलीसिया का राइट है। अगर हम इस बात को देखें ये मेथड आज की कलीसिया का नहीं, ये बाइबल की कलीसिया का मेथड है ना। ये क्या है कि पैसे जमा किए जाते और सारे पैसे इकट्ठे करके रसूलों के कदमों में रखते हैं ना, किधर रखते कदमों में। तो आज हालात ही बदल गए हैं, सोच ही बदली हुई है। क्यों? क्योंकि हम बाइबल की तालीम को मानते नहीं हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि पलूस के पहले जैसे काम नहीं ले, दूसरा तीसरा काम आपका पहले जैसा नाम नहीं लेगा। मैं अक्सर कहता हूँ ना, कई दफ़ा भाई करामत के बारे में बड़ा फेमस ही वो कामा कितने है ना, लेकिन जब यीशु ज़िंदगी में आ गया तब मैंने कामा नहीं सुना, भाई करामत कहाँ है, मुबशर करामत कहाँ है, हमें इसका मतलब कामे की जगह क्या आ गया, नहीं हो गया है ना, मुबशर करामत कहाँ है ना। आज हम कहते हैं मुकद्दस पलूस रसूल, है ना। इसका मतलब पहले साउल फिर पलूस, और पलूस का मतलब छोटा, इसका मतलब पहले वो बड़ा लेकिन मसीह के लिए छोटा बनकर उसने खिदमत की है। आज बहुत सारे लोग छोटा बनना पसंद नहीं करते। चर्च में शायद हम रुतबों की तलाश में हैं, हम ओहदों की तलाश में हैं, हम प्रोटोकॉल की तलाश में हैं, लेकिन मसीह
आपके लिए आपका प्रोटोकॉल नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी देखना चाहता है। आए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, आपका नाम बदल जाएगा, आपके काम बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके कारोबार में बरकत आ जाएगी। शर्त ये है कि जिसके पास दुनिया की बरकतें हैं वो आपका मेरे यीशु नासरी है। आमीन। तो जब यीशु नासरी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपके कारोबार भी बदलेंगे, आपके हालात भी बदलेंगे, आपकी सोच भी बदलेंगी, आपका नाम भी बदलेगा। आए अपनी आंखें बंद करें और यीशु मसीह के हुजूर दुआ मांगना शुरू करें।